हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एजुकेशन वर्ल्ड ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। और ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ MCQs ਔਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ तो पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ सीरीज स्टार्ट हो रही है RUXAD और क्वेश्चन मार्क। देखो ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल A ਦੀ ਨੰਬਰਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1, B ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2, C ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर्स ਨੂੰ नंबर ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ABC ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ D ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂ, R ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 18, U ਦਾ 21, X ਦਾ 24, A ਦਾ 1 और D ਦਾ 4। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3, 21 और 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3। ਹੁਣ X ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਆਇਆ? X ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ Z ਤੱਕ ABC ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ? 3 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ, 1 2 3, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ A ਆਇਆ। तो A ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ D। तो D ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ 3 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। 4 ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਕੀਤੇ 7। ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ABC ਦੇ ਵਿੱਚ G ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। तो इसलिए साडा आंसर इस क्वेश्चन में की होएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऐसा सी साडा पहला क्वेश्चन। इस तो बाद ਆਪਾਂ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते, सेकंड क्वेश्चन ते। ठीक है, नाल दे नाल तुसी भी आंसर बनाई जाने हैं। आंसर बना के अपने देखो मैच करते हुए कि नहीं मैच करते हुए और कितना टाइम तुसी ले रहे हो आंसर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A B B A A B C C B A A B C D और ਕੀ ਆਏਗਾ। ठीक है, अगर तुम सीरीज में ध्यान नाल देखो A B नू बाद चो रिवर्स करके की लिखता, B A लिखता, अगला जो बनया है वो रिवर्स ही है, उल्टा। A B से नू B A बनाता, फिर A B C से तेनू उल्टा रिवर्स डायरेक्शन अगर तुम पढ़ोगे तो क्या आएगा इत्थे। ठीक है, इत्थे क्या आएगा? C B A। ठीक है, क्या आएगा? C B A आएगा रिवर्स, उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा? C B A, अगला ही बनया। ਹੁਣ अगर एनू रिवर्स से लिखोगे तो रिवर्स से क्या आएगा? रिवर्स मतलब राइट तो पहला अक्षर क्या आएगा? D, फिर C, फिर B और A। तो D C B A वाला कॉम्बिनेशन सानू किस ऑप्शन से मिलता है? ऑप्शन नंबर D। तो इसलिए साडा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D। सो यह क्वेश्चन तो बहुत ईजी है सी, कई बार क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके भी साडा आंसर आ सकता है। इस तो बाद आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन तो तुहानू सीरीज दी है, सीरीज स्टार्ट होती है A J S G P Y, इत्थे ब्लैंक, फिर S B K, फिर Y H Q। ठीक है, दिखती पे तुहानू सीरीज मैं ऊपर लिखती हूँ। हुण अगर तुसीं इन्हां दे नंबर्स लिखना चाहते हो तो पहले नंबर्स लिखो, जैसा A का नंबर 1, G का 7, S का 19 और Y का की है 25। क्योंकि सानू पहले पता करना चाहिए साडा आंसर कितों शुरू होएगा। A और G दे विच कितना गैप है? 6 अल्फाबेट्स का। फिर 19 तो बाद 25 आया तो मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कितना 6 का गैप, तो मतलब 6 का गैप चलता है। तो 7 ਵਿੱਚ अगर 6 ऐड करोगे तो ਕੀ आएगा? 13। 13वें नंबर ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਆਂਦਾ? M ਆਂਦਾ, क्योंकि ABC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? M ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ J ਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, P ਦਾ कितना 16, B ਦਾ कितना 2 और H ਦਾ कितना 8। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ डिफरेंस है? 6 ਦਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਵੀ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ? 6 ਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अगर ਤੁਸੀਂ 6 ऐड करोगे, ठीक है, 16 ਵਿੱਚ 6 ऐड ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 22।
तो 22वें नंबर ते किहड़ा अक्षर आंदा V। तुहानूं वैसे आंसर च ऑप्शन च मिल गया होगा कि तुहाडा आंसर की बनेगा, लेकिन आपां पूरा आंसर बना लैंदे हां। हुण उस तो बाद जिहड़ा लास्ट अक्षर हैगा S Y K और Q, इन्हां च कितना गैप है? K दा नंबर कितना 11, Q दा कितना हुंदा 17, इन्हां विच कितना गैप है? 6, मतलब सारिਆਂ में 6 दा गैप ही चलना है। तो S तो बाद आया, S का नंबर कितना 19, 19 में 6 ऐड किए 25, तो 25 के बाद जो 6 ऐड करोगे, ठीक है, 25 अगर तुसी बाद जो 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। 31 मतलब वाई दी तो अगे आप कितने अल्फाबेट जाना है? 6 अल्फाबेट अगे जाना, मतलब Z A B C D और E, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो साडा आंसर B दे नाल की आएगा? E आएगा। तो अगर आप कंबीनेशन ध्यान नाल चेक करिए तो कंबीनेशन सानू किस ऑप्शन च मिलता है? ऑप्शन नंबर बी च। तो इसलिए साडे इस क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इस तो बाद आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तुम आंसर अपना किसी भी तरीके नाल बना सकते हो। ठीक है, आंसर सेम ही होएगा, पैटर्न तुम अपना नप सकते हो। कई स्टूडेंट ABC बोलते हैं, लेकिन ABC बोलने देखने च बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो फिजिबल नहीं होएगा कि तुम ये सारा इस तरह सॉल्व करो ABC बोल के। और अगली सीरीज जो दी है उस सीरीज से सीरीज कितों स्टार्ट होगी? ABD DGK HMS MTB SBL तो शुरू हो रही है। तो आगे की आना वो देखना है। तो पहले ਇਹਦਾ फर्स्ट अक्षर की है A ਦੀ अल्फाबेटिकल पोजीशन की 1, D ਦੀ 4, H ਦੀ 8, M ਦੀ 13, S ਦੀ कितने 19। ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ? ਇਹਦੇ ਚ 3, ਇਹਦੇ ਚ 4, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5, फिर 13 तो बाद 19 मतलब 6। तो फिर 19 तो बाद कितना ऐड करांगे? 19 च आपां ऐड करांगे 7। ठीक है, 19 च आपां की करांगे? ऐड करांगे 7, क्योंकि ऐड की एडिशन इंक्रीज होता पाया। 3 होया, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तो फिर 7। 19 विच 7 ऐड किया तो मतलब 26। तो तुहाडा आंसर जो 26वां अक्षर जिहड़ा हुंदा Z, तो तुहाडा आंसर कित्थों शुरू होएगा? Z तो शुरू होएगा। हुण इन्हां ऑप्शन विच कोई एक आंसर होएगा। फिर उस तो बाद, ठीक है, तो पहला अल्फाबेट पता लग गया। दूजे अल्फाबेट की पोजीशन लिखो। B दी हुंदी 2, B दी हुंदी 2, G दी हुंदी 7, M दी 13, T दी 20 और B दी 2। तो इन्हां च कितना इंक्रीज हुंदा पिया? इहदे च होया इंक्रीज 5, 7 और 13 दे विच कितना 6, 13 और 20 दे विच कितना डिफरेंस 7, फिर इन्हां विच कितना आया 8। ठीक है, तो मतलब 5 6 7 8। तो B तो बाद अगला अक्षर जिहड़ा होएगा उहदे च कितना ऐड होएगा? B दी अल्फाबेटिकल पोजीशन 2 है, उहदे च कितना ऐड होएगा? 10 ऐड होएगा, मतलब 12वां। इहदे विच कितना सॉरी 9 ऐड होएगा, क्योंकि एक एक करके इंक्रीज होंदा है। 5 6 7 ते 8। तो 8 तो बाद अगला नंबर आता 9। 2 + 9 कितना हो गया? 11। तो 11वें नंबर ते किहड़ा अक्षर आंदा? K। तो ZK। हम सानू देख पता तो लग गया कि साडा आंसर जो है या तो C ऑप्शन होएगा या तो D ऑप्शन होएगा। सानू देखना पड़ेगा कि ऑप्शन लास्ट अल्फाबेट किहड़ा आएगा, U आएगा कि W आएगा। कई बार ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, सानू पूरे आंसर बनाने की लोड़ नहीं है। पर जिस ऐसा के क्वेश्चन दिते हो ये जो आंसर ऑप्शन तुहानू नहीं दिते हुए जिदा तुसीं एलिमिनेट कर सको। तो लास्ट अल्फाबेट है D 4, इहदा 11 लिखांगे, इहदा 19, इहदा 2 और इहदा 12। इन्हां च कितना एडिशन हो रहा है? इहदे च होया एडिशन 7, इहदे च कितना एडिशन होया 8, इहदे च कितना 9 28। ठीक है, और इहदे च कितना आया 10। तो 10 तो बाद 12 है ना, तो एल की पोजीशन 12 है। तो 12 दे विच होर कितना ऐड होएगा? 10 तो बाद अगला नंबर क्या आंदा 11, मतलब 23rd। 23rd ते किहड़ा अल्फाबेट हुंदा? साडे कोल W हुंदा, मतलब SBL तो बाद जो मिसिंग सीरीज आएगा आंसर तो आएगा D ऑप्शन ZKW, मतलब D ऑप्शन आएगा आंसर। आई थिंक इस लेटर सीरीज के क्वेश्चन च आई थिंक तुहानू किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग पढ़िया है तुसीं। कोडिंग डिकोडिंग च नंबर्स ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो गए होने इन्हां नंबर्स की हेल्प नाल तुसीं इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जल्दी तो बना सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करके थोड़ा तुहानू लंबा लगता है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज तुहानू पेपर च खुद बनाना होए तो तुसीं आसानी नाल क्वेश्चन बना सकते हो। तो हुण असीं मूव करते हैं इहदे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ते। ठीक है, सो इस सीरीज दित्ती है तुहानू Z
वाई एक्स यू टी एस पी ओ एन के और उस तो बाद लास्ट 2 अल्फाबेट्स। नंबर्स लिख दिया पहले ना, नंबर्स लिखते ही तुम क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज किस तरह चलती भी है। नंबर्स लिखे एन का 14 और के का 11। हुन एस जेड और वाई एक्स एक अब सक्सीड प्रोसीडिंग अल्फाबेट एक एक पीछे। यू तो पहले ही आंदा टी एस, पी तो पहले ही आंदा ओ एन, तो के तो पहला की आएगा। ठीक है, वैसे तुसी अगर पहला अल्फाबेट मिसिंग ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? -3। तो एन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एन ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 14 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 11। ਹੁਣ के तो पहला अगला पहला अक्षर की आंदा है, नंबर लिख सकते हो 11 10 9, क्योंकि एक नंबर कटेगा। 10वें नंबर पे आंदा जे और 9वें नंबर पे आंदा आई। तो कॉम्बिनेशन देखो जे और आई का कॉम्बिनेशन में किस ऑप्शन च मिलता? ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके ना ਤੁਹਾਡਾ भी आंसर आया होगा। ठीक है, नाल दे नाल अपने आंसर्स मैच करते जाने हैं और कमेंट सेक्शन पे भी तुसी अपना आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ आंसर जो भी बनते पे हम मूव करते हैं अब अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन से सी भी स्टार्ट हो रही है, पी एम टी डबल ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू और लास्ट एफ मिसिंग है। पहले ना नंबर्स लिख लेने हैं। नंबर्स लिखने नाल की होएगा सानू क्लियर होएगा कि आंसर किस तरह बनाना है। ठीक है, नंबर्स मैं बोल ही रही, नंबर्स किस तरह याद करने दस्या आया है। तो एदा पहला अल्फाबेट पी, एदा पहला अल्फाबेट ओ है, एदा एन, एदा एम। 6। ठीक है, एक अगर नंबर्स तो बगैर भी तुम देखो चेक करके, तो पी तो पहला वाला अक्षर, फिर एन, फिर एन तो पहला एम, तो एम तो पहला की आंदा है एल। तो मतलब जो भी तेरा आंसर शुरू होएगा कितने शुरू होएगा? एल तो शुरू होएगा। ठीक है, उस तो बाद एना वाले मिड वाले नंबर्स, एना दोनों च कितना डिफरेंस है? +2। फिर एना दोनों दे विच भी डिफरेंस कितना है? +2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ डिफरेंस? +2। तो फिर 19 तो अगे की होएगा? 19 च कितने ऐड होएंगे? 2 ऐड होंगे, मतलब 21वें नंबर ते केड़ा अल्फाबेट आंदा साडे कोल? यू आंदा है। की आंदा है? यू आंदा है। ठीक है, वैसे तो आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए होएगा। लेकिन अगर कुछ और ऑप्शन है जिस च मैं यू करदा तो फिर सानू पूरा आंसर बनाना पड़ेगा। एक बार आंसर पूरा बना लेना है। ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸਟ अल्फाबेट 20 है, ਇਹਦਾ लास्ट अल्फाबेट ਦਾ नंबर की 19, ਇਹਦੇ लास्ट अल्फाबेट ਦਾ नंबर की 18 17, मतलब एक पीछे जा रहे हो। तो क्यू तो पहला पिछला अल्फाबेट केड़ा आंदा? पी आंदा, तो मतलब एदा इस क्वेश्चन आंसर की बनेगा LUP। ऑप्शन नंबर ए आएगा इस क्वेश्चन आंसर साडा। ठीक है, सो सारे का आंसर LUP आया होएगा। ऑप्शंस अपने नाल नाल मैच करते जाने हैं। इस तो बाद ਅਸੀਂ मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो सीरीज थोड़ी जी लंबी दिखती है, इन्हें चेक करना पेगा। ਇਹਦੇ P T V X A E G I, ਇਹਦੇ ਚ फिर मिसिंग है, मतलब 4 अल्फाबेट्स आने हैं। फिर W A C E H L M P। नंबर्स इन्होंने अगर आप पहले लिखिए, ठीक है, तो नंबर्स इन्होंने लिखा तो 16 20 22 24, एदा 1 5 7 और 9, एदा 23। ए दी अल्फाबेटिकल पोजीशन 1, सी दी 3 होंदी है, ई दी 5, एच दी 8, एल दी 12, एन दी 14 और पी दी 16। हुण इन्हां च पहले देखो आंसर कित्थों शुरू होएगा। हुण पी और ए नूं ते कंपेयर करन दा फायदा नहीं गा। ठीक है, कंपैरिजन करना है तो उन्हां च करना जिहड़ा मिनिमम डिफरेंस है। तो मैनू एक्स और ए, क्योंकि ये सीरीज एक्स तो बाद तो ए तो शुरू हो रही है, इन्हां च कितना डिफरेंस है? एक्स तो बाद साडी अल्फाबेट किस तरह आएगा? ए किस तरह आएगा? 1 2 3, मतलब कितने स्टेप अगे गए आपां? 1 2 3, तो इहदे च 3 स्टेप करता आपां। ठीक है, इहदे च 3 स्टेप लिखता। सिमिलरली ए तो बाद सीरीज कित्थों शुरू होएगी? ए तो बाद आई दसेगा कि सीरीज कित्थों शुरू होएगी। लेकिन एक बार आपां चेक कर लेना ई और एच दे विच कितना गैप है? 3 का। तो मतलब लास्ट अल्फाबेट आई है, आई दी न्यूमेरिकल पोजीशन कितनी होंदी है? 9, 9 विच 3 ऐड करांगे तो कितना आएगा? 12। 12वें नंबर ते केड़ा अल्फाबेट आंदा? एल आंदा है। ठीक है, उस तो बाद बाकियां विच डिफरेंस की है? इहदे च 4 +2 +2, इहदे च भी
+2 नहीं +4 +2 और +2 आपस इधर भी यही डिफरेंस है +4 अगे जावांगे फिर +2 इतने क्लीयर हो गया तो मतलब 12 में उस तो बाद की कितने ऐड करने हैं 4 ऐड करने हैं 4 ऐड करोगे तो 16वें नंबर तक आंदा पी तो 16 तो बाद कितना ऐड करना 2 ऐड करना मतलब 18 नंबर तक अल्फाबेट आंदा आर राइट टू वोट ऐसा याद कर सकते हो फिर 18 ਦੇ ਵਿੱਚ कितना ऐड करोगे 2 ऐड करोगे मतलब 20th नंबर तक अल्फाबेट आंदा टी आंदा मतलब LPRT आंसर की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ LPRT इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और यह ऑप्शन सन किधर च मिलता ऑप्शन नंबर बी च मिलता इसलिए साਡਾ आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी सो आई थिंक बाकी का भी यही आंसर आया होगा हम साडे लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए तो आंसर तुसी भी अपने बनाओ नाल दे नाल पैटर्न चाहे तुसी कोई होर अलग देख सकते हो बट इन्हां नंबर्स से तुहानू हेल्प लेनी पेगी इस तो बगैर आंसर जल्दी नहीं बनेगा उस तो बाद सीरीज है मैं सीरीज से तुहाडा पहला टर्म मिसिंग है जनरली आपां देखिया लास्ट वाला टर्म हुंदा इन्हें तो पहले टर्म मिसिंग है सारे तीन अल्फाबेट्स मतलब पहले वाले जिथे भी मिसिंग जो टर्म्स होंगे 3 होंगे सीरीज की है SIYOEU KAQ GWM CSI ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ I ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 Y ਦਾ 25 O ਦਾ 15 ਇਜੋਟੀ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ E ਦਾ 5 U ਦਾ 21 K ਦਾ 11 A ਦਾ 1 Q ਦਾ 17 G ਦਾ 7 W ਦਾ 23 और M ਦਾ 13 C ਦਾ 3 S ਦਾ 19 और ऐसा लिख लिया ਹੁਣ फिर तो मिनिमम डिफरेंस कंपेयर करना है ਇਹਦਾ 3 अदर डिफरेंस कितने ना मिनिमम बनेगा 13 की बजाय इतना बनाने देख देते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है 4 फिर 7 का मिनिमम डिफरेंस कितना बनना है 11 में 4 ऐड हो रहा है फिर 11 तो बाद 4 ऐड किया 15 से 4 ऐड किया 19 तो 19 से 4 ऐड करांगे तो ना ही सानू पता लगेगा साडा पहला अल्फाबेट की होएगा वैसे तो 3 ऑप्शन W या V ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 19 ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕੀਤੇ 23ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੇਟ ਆਂਦਾ ਹੈ W ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਬੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਟਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਸ਼ਨ W ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਲਫਾਬੇਟ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ 19 S ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ CSI में सेकंड अल्फाबेट की है S की पोजीशन 19 है ਇਹਦੀ पोजीशन की ਕੀਤਾ 4 ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 4 ਇਹਦੇ ਚ मतलब 4 ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ तो 5 ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕੀਤੇ 9 ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕਰੋਗੇ तो कितना आएगा 13वें नंबर तक ही आता है M तो लास्ट अल्फाबेट भी देख सकते हो I 9 है ਇਹਦੇ ਚ कितना डिफरेंस है 4 M तो बाद है Q तो शुरू हो रहा है ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 4 ਦਾ डिफरेंस है ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 4 ਦਾ डिफरेंस 17 + 4 21 21 + 4 25 ਵਿੱਚ 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 29 ABC से 26 अल्फाबेट होंगे 26 ते हो गया Z ते खत्म 27 28 29 क्या आएगा A B C मतलब 3 स्टेप आगे जाना तो क्या आएगा थे C आएगा तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर है तब ऑप्शन नंबर बी का आंसर आएगा और इस तो बाद आप मूव करते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन थे इस लेक्चर दे सो एरिया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ W F B then T G D then Q H G तीन मिसिंग है 23 6 2 T ਦੀ 20 G ਦੀ 7 P ਦੀ 4 Q ਦੀ 17 H ਦੀ 8 और 7 पहले तो मिनिमम डिफरेंस जिस तरह दोनों नंबर से है जरूरी नहीं कि हर बारी मैं जिस तरह गया उस तरह ही जाना देखो एक क्वेश्चन से दो पैटर्न लास्ट और फर्स्ट वाले का बनना सी इस तो तुम देखना मिनिमम डिफरेंस देखना मैंने 23 और 20 च मिनिमम डिफरेंस दिखता पे कितना -3 सिमिलरली ये जो B भी 3 माइनस कितने 17 तो इसलिए ताड़ी ऐ सीरीज कितों स्टार्ट हुई Q तो 17 में जो 3 माइनस करोगे तो 14वें नंबर पे अल्फाबेट केड़ा आंदा M तो मतलब बड़ा आंसर जो शुरू होएगा N तो शुरू होएगा उस तो बाद जेड़ा मिड वाला अल्फाबेट है F G H एक ही है सक्सीडिंग
FGH, ठीक है। तो H तो बाद अगला अल्फाबेट की आंदा है, आई आंदा, तो NI। तो ताड़ा आंसर या तो ए होएगा या तो बी होएगा। की आंसर आएगा मार्क कर सकते हो अपना या टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। NI सानू पहले दो अल्फाबेट्स मिल गए, तो लास्ट अल्फाबेट क्या आएगा, J आएगा कि K आएगा, इसका पता लगेगा। इधर लास्ट अल्फाबेट B है और इधर D, इधर दोनों च कितना ऐड करोगे 2। सिमिलरली 4 विच G ऐड किया, 4 विच 3 ऐड किया 7, ठीक है। तो मतलब इत्थे कितना ऐड होया, इत्थे तुसी ऐड किया 2, इत्थे ऐड किया तुसी 3, 2 3 मतलब कांस्टेंट नहीं रहा नंबर, नंबर इंक्रीज होया 2 3। तो मतलब 7 विच कितना ऐड होएगा, अगला नंबर 3 तो बाद के अंदर 4। तो 7 विच 4 ऐड किते 11, 11वें नंबर का अल्फाबेट की आंदा साडे को K आंदा। तो ताड़ा आंसर इस क्वेश्चन लिए आएगा बी ऑप्शन NIK। हुण है साडा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का लेटर सीरीज का। सो ए लेटर सीरीज ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर ताड़े पेपर जाए तो ऐसा के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना और मैक्सिमम एक्यूरेसी नाल करना है। लास्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन वास्ते मैंने नंबर की लोड़ ही नहीं है। इस क्वेश्चन अगर तुम स्क्रीन पर देखोगे एडवेंचर वर्ड है पहले, ठीक है। थे फिर एडवेंचर तो बाद उन्होंने की किया, इधर वाली साइड से ए का की करता रिमूव करता। फर्स्ट स्टेप से पूरा वर्ड सी, दूसरे स्टेप च इधरों लेफ्ट साइड तो ए अल्फाबेट इरेज करता। तीसरे स्टेप च इन्होंने इधरों जो अल्फाबेट ई, तीसरे स्टेप च इत्थे की करता इनू इरेज करता। चौथे स्टेप च डी नू इरेज करता। तो व्हेन टी यू मतलब एक बारी लेफ्ट तो पहले लेफ्ट तो कितना ए इरेज, फिर राइट तो इरेज किया डी, फिर लेफ्ट तो डी इरेज किया। तो हम फिर कितनी टर्न है राइट तो आर, राइट तो कितनी टर्न है, इस तो बाद राइट तो टर्न है आर डी। इथों एक मिनट इथों ई इरेज किया, इस तो बाद एक मिनट इस क्वेश्चन को फिर तो देखते हैं। एडवेंचर वर्ड से पहले उन्होंने ए नू रेस किया स्टेप, फिर दूसरे स्टेप च उन्होंने इधरों ई रेस किया, फिर तीसरे स्टेप च उन्होंने इधरों ओके मिसिंग टर्म जो है विचकारला मिसिंग है, ठीक है। तो पहले स्टेप च इधर वाले च ए रेस किया, ए वाले च ए नू रेस किया इधरों लेफ्ट तो, दूसरे स्टेप च उन्होंने ई नू रेस किया। तो तीसरे स्टेप च की रेस होएगा, इधरों दी रेंज इरेज होएगा ताड़ा की डी इरेज हो जाएगा VNTUR, ए बचेगा इत्थे जो मिसिंग टर्म आएगा, ठीक है। इस तो बाद उन्होंने अगर डी इथों रेस किया तो फिर आर रेस करके ताई ताड़ा लास्ट टर्म आंसर बनता पे व्हेन 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा साडा, इत्थे मिसिंग टर्म है जिथे क्वेश्चन मार्क्स ना। तो एक बारी लेफ्ट तो इरेज करते पे अक्षर, एक बारी राइट तो लेफ्ट राइट तो करते पे, तो इसलिए साडा इस क्वेश्चन का आंसर की बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल सी, इस क्वेश्चन में तुम देख के भी कर सकते सी, नंबर की मदद नहीं सी। ऐसे साडा लास्ट क्वेश्चन इस लेटर सीरीज का, और इत्थे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है और ये 10 क्वेश्चन है इसी लेटर सीरीज तो भी खत्म होते हैं। आई होप सो ताड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी नाल लेटर सीरीज की, और क्वेश्चन भी तुहानू करके पता लग गया इनकी तारी तैयारी किस तरह की है। लेक्चर कंक्लूड करने तो पहले यही कहूँगी, अगर तुहानू लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ EW एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।